سندھ اسمبلی کے ارکان کا فوٹو سیشن جاری ہے۔ فوٹو سیشن کے لیے ایم پی ایس جمع ہو گئے ہیں۔ براہ راست مناظر دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اجلاس جو ہے وہ کچھ دیر میں ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عاجز جمالی موجود ہیں۔ عاجز، کیسی گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، سندھ اسمبلی کے الوداعی جو ہے ایام ہے، الوداعی بلکہ آخری دن ہے، اور الوداعی دن کا الوداعی فوٹو سیشن جو ہے اس نے کیمرہ کی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تمام ارکان جو ہیں یہ اس وقت فوٹو سیشن کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ 168 جو ہے وہ نشستیں یہاں پر رکھی گئی ہیں، چونکہ 168 اراکین سندھ اسمبلی ہیں۔ پہلی جو نشست ہے اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء ہوں گے۔ اس کے بعد والے دوسری نشست میں بھی، دوسرے لائن میں بھی وزراء کی لائن نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پارلیمانی سیکریٹریز ہیں اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے ارکان ہیں۔ مجھے نظر آ رہے ہیں فوٹو سیشن باقاعدہ شروع تو ابھی تک نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن اس فوٹو سیشن میں اس وقت اراکین اپنے نشستوں پر بیٹھ رہے ہیں، اور ان میں 168 تو ابھی تک نظر نہیں آ رہے، لیکن اراکین کی ایک بڑی تعداد سندھ اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے اپنے 5 سال مکمل کیے، وہ اس وقت فوٹو سیشن کے لیے یہاں پر سندھ اسمبلی کے روسٹرم کے باہر ایک پورا اسٹیج بنایا گیا ہے، اس اسٹیج پر موجود ہے۔ جی ڈی اے کے ارکان مجھے نظر آ رہے ہیں، شہریار مہر نظر آ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن، بلکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے اراکین بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آخری نشست کی میں بات کر رہا ہوں، حسنین مرزا ہیں جی ڈی اے کے، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں۔ ابتدائی 4 جو قطاریں ہیں، 4 لائنیں ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلی لائن میں وزراء ہیں، اس کے بعد پارلیمانی سیکریٹری ہیں، اس کے بعد ارکان ہیں۔ فوٹو سیشن ابھی تک باقاعدہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اسپیکر آغا سراج درانی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو ہی پہنچیں گے، وہ اس وقت اسمبلی کے ہال میں موجود ہیں۔ چونکہ اس سے قبل فوٹو سیشن سے قبل زہرانہ ہوا تھا اراکین کے اعزاز میں، یہ تمام اراکین جو ہیں سندھ اسمبلی زہرانے میں شریک تھے، اور زہرانے کے بعد پھر یہ یہاں پر پہنچے ہیں فوٹو سیشن کے لیے۔ ابھی یہ فوٹو سیشن ہوگا۔ سندھ اسمبلی اپنے 5 سال مکمل کر چکی ہے، آج اس کا آخری دن ہے، الوداعی فوٹو سیشن ہے۔ ان 5 سالوں کے دوران 502 روز سندھ اسمبلی کی کارروائی چلی ہے، اور اس میں جو ہے 267 قانون سازی کی گئی ہے، بل منظور کیے گئے ہیں، سرکاری بل، جبکہ اگر میں سیشنز کی بات کروں تو 35 سیشن ہو چکے ہیں سندھ اسمبلی کے ان 5 سالوں کے دوران۔ تو یہ 5 سالوں کا آج آخری دن ہے۔ اس دن اب فوٹو سیشن کے لیے ارکان یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی تک پورے ارکان یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے کچھ اہم ارکان کا، جس میں اسپیکر سندھ اسمبلی کا انتظار کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہی پہنچیں گے تو پھر ارکان کا ایک یہ یادگار فوٹو بنتا ہے۔ یہ سندھ اسمبلی کی پارلیمانی روایت ہے، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آخری سیشن ہوتا ہے اور آخری اجلاس ہوتا ہے، آخری اجلاس کا جب آخری دن ہوتا ہے تو پھر اس میں اس طرح کا فوٹو سیشن بنتا ہے۔ ابھی آخری اجلاس کا آخری دن ہے، اور ابھی سیشن اجلاس کا جو روایتی سیشن ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ اس فوٹو سیشن کے بعد جو ہے ارکان آج آخری اپنی قانون سازی کریں گے، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ بھی خطاب کریں گے، اپوزیشن لیڈر رانا انصار بھی خطاب کریں گی، آج آخری دن پہ اپنی 5 سالہ کارکردگی پر بات کریں گے۔ بہرحال ابھی اس وقت فوٹو سیشن کی تیاریاں ہیں۔ اچھا عاجز، آج وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے گورنر کو خط بھی لکھیں گے، وہ کب تک خط لکھا جائے گا؟ جی ہاں، آج جب یہ اسمبلی کی کارروائی مکمل ہوگی، چونکہ ابھی بھی اس کے بعد بھی شاید 3-4 گھنٹے یہ اسمبلی کی کارروائی چلے گی۔ اس فوٹو سیشن کے بعد سندھ اسمبلی کا جو سیشن ہے اس کی کارروائی شروع ہوگی۔ اس کارروائی کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ، یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں آج ہی اپنا پیش کریں گے ایڈوائس گورنر سندھ کو،
اور اس کے بعد پھر گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹسوری سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا مرحلہ آج رات کے لیے مکمل ہوگا، لیکن ابھی تک جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. ابھی میری تھوڑی دیر قبل ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان کل جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اپنے نام جو ہیں وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر 2 دن مشاورت ہوگی، اس کے بعد پھر حتمی نام کا اعلان کیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. تو آج ابھی بھی جو میرا امکان ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے سندھ اسمبلی کا آنے والا جو سیشن ہے وہ جاری رہے گا. اس فوٹو سیشن مکمل ہونے کے بعد تمام ارکان جو ہیں وہ چلے جائیں گے. ابھی اسپیکر آغا سراج درانی بھی اس فوٹو سیشن کو جوائن کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی پہنچ چکے ہیں اور اسپیکر آغا سراج درانی بھی پہنچ چکے ہیں. تو اس طرح یہ فوٹو سیشن باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور اسپیکر آغا سراج درانی کا استقبال ہو رہا تھا، یہ جو ہی پہنچے ہیں تو ارکان نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. یہ اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی اور اسپیکر آغا سراج درانی بھی. تو یہ جب یہاں پہنچے ہیں تو ان کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور ابھی تصاویر نکالی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ تصاویر نکال رہے ہیں، یہ خاص طور پہ سیلفیاں نکل رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کو فرنٹ رو پہ بڑا رش نظر آ رہا ہے. کیمرہ مین اور ان تمام کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ یہ ہم اپنے ناظرین کو اسکرین پر یہ تمام مناظر سندھ اسمبلی کے جو آخری مناظر ہیں، بالکل آخری مناظر ہیں، لاسٹ موومنٹ آف دا سندھ اسمبلی، ہم ان لاسٹ آخری مراحل کو اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں تاکہ یہ جو ٹی وی کے اسکرین پر عوام ان مناظر کو دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکیں، تاکہ اس وجہ سے جو ہے سندھ اسمبلی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ویل چیئر پہ ایک خاتون رکن جو ہے وہ ویل چیئر پہ آئی ہیں. یہاں پر پہلی نشست میں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمانی سیکریٹریز ہیں، اس کے بعد پھر اراکین اسمبلی ہیں، خواتین اراکین ہیں، اور آخری نشست پر اپوزیشن کے ارکان ہیں جن میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ ارکان جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. آخری رو میں پی ٹی آئی کے 2-3 ارکان بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو فوٹو سیشن کا مرحلہ جاری ہے. آپ اپنے اسکرین پر ہمارے ناظرین اس مرحلے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سندھ اسمبلی کا بالکل آخری لمحے ہیں. سندھ اسمبلی آخری لمحہ تو ویسے تحلیل ہونے کا ہوتا ہے، اب لوگوں کو ہٹایا گیا ہے. آپ اپنے اسکرین پر یہ تمام اراکین کو مزے سے دیکھ سکتے ہیں. پروین بشیر قائم خانی ہیں، خاتون رکن، یہ پیپلز پارٹی کی بڑی سینئر رکن ہے. یہ اس وقت ویل چیئر پر سب سے پہلے موجود ہیں. اس کے بعد پھر اسپیکر آغا سراج درانی کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ، اور پھر اسی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اسپیکر کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر، اور پھر اپوزیشن لیڈر رانا انصار بھی بالکل پہلی نشست پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد 168 ارکان یہاں پہ ہونے تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اراکین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ارکان موجود ہیں. آخری رو میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 سے 15 سیٹیں خالی پڑی ہیں جن میں کوئی بھی رکن نہیں ہے. یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے سندھ اسمبلی کا اپنا الوداعی فوٹو سیشن ہے جس میں تمام کے تمام اراکین موجود ہیں. سندھ اسمبلی کے سینئر رکن سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی پہلی نشست پر موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ دیگر صوبائی وزراء جو ہیں وہ اپنی نشست پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ارکان جو ہیں وہ پہلی پوری لائن میں وزراء ہیں، اپوزیشن لیڈر ہے، پارلیمانی سیکریٹریز ہیں، دوسری لائن میں اراکین اسمبلی ہیں، تیسری میں خواتین اراکین ہیں، چوتھی لائن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سینئر لوگ ہیں، اور آخری لائن تک بھی
آخری لائن میں MQM کے بڑے سینئر رکن ہیں محمد حسین، وہ بھی موجود ہیں، اور راشد خلجی ہیں، دیگر تمام ارکان MQM کے موجود ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ تمام جماعتوں کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے۔ PTI کے بھی منعرف ارکان میں سے کچھ ارکان یہاں پر موجود ہیں، یعنی PTI، MQM، GDA اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن خواتین ونگ کی صدر فریال ٹالپور صاحبہ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ایک جانب فریال ٹالپور ہیں، ان کے ساتھ پھر قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی دوسری جانب اسپیکر آغا سراج درانی ہیں، ان کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر ہیں، پھر ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر رانا انصار ہیں۔ اس طرح یہ تمام ارکان جو ہیں اس وقت سندھ اسمبلی کے بالکل فورم پہ موجود ہیں، ان کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں یہ فوٹوز بن رہے ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ لازمی ہے کہ یہ آخری مراحل ہیں، اور یوں یہ فوٹو سیشن کا جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، فوٹو سیشن ہو چکا ہے۔ اراکین اب یہاں سے اٹھ کر دوبارہ سیشن میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سندھ اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، جیسے کہ عاجز آپ بتا رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس 4 سے 5 گھنٹے تک جاری رہے گا، بتائیے گا اس اجلاس پہ کون کون خطاب کرے گا، اور یہ بھی واضح کیجیے گا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اہم قوانین پاس کیے جائیں گے، وہ کون سے اہم قوانین ہیں؟ کیا اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، سندھ اسمبلی کے اس سیشن سے قبل سندھ کابینہ کا ایک اجلاس تھا، جس میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ نگران کابینہ کے دوران ملازمتوں پر بھرتی عائد ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس طرح کا ایک قرارداد یا بل آج سندھ اسمبلی میں پیش کی جائے، اور سندھ اسمبلی کا جو روایتی ایجنڈا ہے وہ بھی اب جاری ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد فاتحہ خوانی ہوں گی، فاتحہ خوانی کے بعد پھر سوال و جواب کا وقفہ ہوگا۔ سوال و جواب کے وقفے کے بعد کچھ اراکین کے توجہ دلاؤ نوٹسز ہیں، ان پر صوبائی وزراء جو ہیں وہ جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر سندھ اسمبلی کے 5 سال مکمل ہونے پر تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تقاریر کی لسٹ تو نہیں جاری ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سینئر وزراء خطاب کریں گے، اور سینئر وزراء کے علاوہ اپوزیشن کے کچھ سینئر اراکین خطاب کریں گے، اور پھر آخر میں لیڈر آف دی اپوزیشن رانا انصار اور لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خطاب کریں گے۔ ظاہر ہے یہ تقاریر طویل ہوں گی۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ اپنی 5 سالہ کارکردگی پیش کریں گے، یقیناً اپوزیشن اس پر تنقید بھی کرے گی، لیکن یہ چونکہ الوداعی سیشن ہے تو یہ ساری باتیں آج ہوں گی، اور پھر الوداعی ملاقاتیں ہوں گی۔ الوداعی زورانہ ہو چکا ہے، فوٹو سیشن ہو چکا ہے، سندھ اسمبلی کا الوداعی سیشن جو ہے تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ جی، سندھ اسمبلی کے اراکین نے آخری فوٹو سیشن کروا لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے یہ لائیو مناظر اپنے اسکرین پر دیکھے ہیں، اور اس سے پہلے زہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا، زہرانہ دیا گیا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ اس کے بعد کیا جائے گا۔ آج سندھ اسمبلی کا اجلاس آخری اجلاس ہے، جو کہ کچھ دیر بعد سندھ اسمبلی تحلیل کرتی جائے گی۔ کچھ اہم خطاب کیے جائیں گے، کچھ اہم بل منظور کیے جائیں گے، کچھ اہم چیزیں سامنے آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا بھی اختتامی اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ہوا۔ پوری کابینہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی خدمات کو بے حد سراہا ہے۔ ارکان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے عوام کے لیے خدمت قابل تعریف ہے، اور تمام مناظر آپ نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے، یہ لائیو مناظر آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے ہیں۔ فوٹو سیشن کیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، جس میں اپوزیشن میں GDA، MQM، PTI کے ارکان موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ موجود تھے، اسپیکر سندھ اسمبلی موجود تھے، اور دیگر تمام اراکین بھی موجود تھے۔ فوٹو سیشن کروایا گیا ہے۔ اس سے پہلے اراکین اسمبلی کے الوداعی زہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اراکین اسمبلی کی تواضع سندھ بریانی، مٹن کڑاہی، دمبے کی کڑاہی سے کی گئی ہے، اور گولا کباب، ریشمی کباب، لاہوری تکہ بھی اس مینیو میں شامل تھا۔ بالکل، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب تازہ ترین صورتحال؟ جی ہاں، اراکین کی الوداعی فوٹو سیشن بھی ہو گیا، الوداعی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، الوداعی زہرانہ بھی ہو گیا، لیکن ابھی جو روایتی اجلاس ہے وہ ابھی سیشن شروع ہوگا۔ اس وقت میرے ساتھ گوٹکی سے رکن سندھ اسمبلی شہریار شر صاحب موجود ہیں، میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ شہریار صاحب، یہ 5 سال کیسے گزرے آپ کے؟ ماشاءاللہ الوداعی کھانا بھی کھا لیا اور الوداعی فوٹو بھی بن گئے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے بھائی الحمدللہ
हमारे जो 5 साल गुजरे हैं सो स्पीकर साहब ने बहुत ही खुशगवार मूड में और हम सबको मिलकर चलाया। पहले तो 2-2.5 साल जो गुजरे थे हम पीटीआई में थे उस टाइम बहुत ये हंगामा आराई अंदर होती थी, कोई डिसिप्लिन नहीं होता था, लेकिन वो जैसे तैसे वो गुजर गए। लेकिन पिछले जो 2.5 साल है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही खुशगवार मूड में गुजरा और हमने छोटे से छोटा अपने इलाके का मसला, अपने पीएस का मसला, PS 18 उबाड़ों का मसला, छोटे से छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला असेंबली के फ्लोर पे हमने जितना हो सका हमने कोशिश की उस छोटे से छोटे मसले को उजागर किया असेंबली के फ्लोर पे। और हम आगे भी अपने इलाके की आवाम से, PS 18 की आवाम से पुरुमेद हैं कि इंशाल्लाह हम उम्मीद की झोली लेके जाएंगे, फिर झोलियां भर के आएंगे, इंशाल्लाह फिर कामयाब होंगे। पाकिस्तान साहब, आप वो पहले मेंबर थे, सबसे पहले आपने पीटीआई छोड़कर यहाँ हुकूमती बेंचेस को ज्वाइन किया था और उस वक्त एक इशू चल रहा था जिस इशू की वजह से हमें याद है कि आप जब आपने पीटीआई की मुखालफत भी की थी, पीटीआई के MPA होते हो, तो वो क्या वाक़या था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को याद दिला दें। मेरे भाई, जैसा कि हमारे यहाँ जब हम असेंबली में आए तो मेरे ऊपर ख़ास तौर पे मेरे ऊपर एक इम्तिहान आया था, एक इम्तिहान की घड़ी थी। वो जजीरों वाला मसला था, जो सिंध के जजीरे थे वो पीटीआई वालों ने वफाक के हवाले किए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लाया था और उन जजीरों के ख़िलाफ़। तो मैंने अपनी पार्टी से, पीटीआई से बगावत करके, ये मेरी सिंध धरती का मसला था, ये मेरी 6 करोड़ आवाम का मसला था, ये मेरी गैरत का मसला था। उस हवाले से मैंने अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मैंने अपनी पार्टी की उस खिलाफ वर्जी की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रेजोल्यूशन की मैंने हिमायत की थी। उसी की मुझे सज़ा मिली। उसी हिसाब से पीटीआई वालों ने फिर मुझसे इस्तीफ़ा भी ले लिया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी, मैडम अदी फरियाल तालपुर साहिबा की मेहरबानी, जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमें इतने लायक समझा और हमें अपनी चेयर पे बिठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। आगे क्या इरादे हैं, दोबारा जाएंगे इस इलेक्शन में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे जवां हैं, हम पुरुमेद हैं इंशाल्लाह। जो है कि अपनी जो हमारी PS 18 के दोस्त हैं उनमें हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मसला मैंने असेंबली के फ्लोर पे उजागर किया है और मैं जितने भी मुझसे हो सका है मैंने अपने हलके की खिदमत की है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब होकर आएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। मेहरबानी। ये थे शहरयार शर साहब, रुकन सिंध असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। घोटकी से ये इलेक्शन जीत कर गए, उबावड़ों के इलाके से, लेकिन ये चूँकि जब इलेक्शन जीते तो इनका पीटीआई से ताल्लुक था। बाद में इन्होंने पीटीआई से मुस्तफ़ी होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, जजीरों के मसले पर जैसे इन्होंने बताया। जी, सिंध असम्बली के हॉल में तमाम अरकान जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद सिंध असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। अब आपको बताएं कि जामिया कराची में 2 रोज़ कबल तलबा तंजीमों के कारकुनान दरमियान होने वाला झगड़ा तवील पकड़ गया। तलबा तंजीम के कारकुनान ने सिल्वर जुबली गेट पर एहतजाज भी किया। जी हाँ, आपको बताएं जामिया कराची में 2 रोज़ कबल तलबा तंजीमों के कारकुनान के दरमियान होने वाला झगड़ा तूल पकड़ गया है। तलबा तंजीम के कारकुनान ने सिल्वर जुबली गेट पर एहतजाज भी किया है। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची की तलबा तंजीमों में तसादुम की जो खबरें हैं आए दिन जो है हमें देखने को नजर आती हैं। आज इसकी मुनासिबत से ये जो सिंधी शागिर्द साथ तलबा तंजीम जो है यहाँ पर एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाई जा रही है। मेन सिल्वर जुबली का गेट है जहाँ पर ये तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, जब तक ये मुतालबात की पूरे होने तक यहीं पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, यहाँ पर एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज इस वक्त यहाँ पर करवाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भी नफरी मौजूद है, रेंजर्स की भी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एहतजाज इस वक्त रिकॉर्ड भी करवाया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं और यह एहतजाज कब तक चलेगा, सिंधी शागिर्द साथ की एक तलबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए क्या मामलात हैं और ये एहतजाज कब तक चलेगा और बुनियादी क्या आप लोगों के मसाइल हैं?
जी, ये एहसास तब तक चलेगा जब तक हमारे मुतालबे जो हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी इसी दिन 9 अगस्त को ही हमारे साथ यही हुआ था। सिंधी शागिर्दों को पर तशद्दुद किया गया था। उसके साथ साथ हमारे जो शाह लतीफ़ के बेत हैं उन्हें मिटाया गया था, जिनको हम आयतें मानते हैं, क्योंकि उन बेतों में कुरान शरीफ की आयतों के अल्फाज होते हैं, आयतें मौजूद होती हैं, उन आयतों को मिटाया गया है। यकीनन जी, कराची यूनिवर्सिटी सब लोगों की है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जो हमारे देखने वाले हैं, गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ था, क्या हुआ था बेसिकली, क्या वजूहात क्या थी जो आपस में झगड़ा हुआ? हमारे 5 तलबा जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल हम लेके गए थे। पॉइंट से जो ये झगड़ा शुरू हुआ था, हमारे यहाँ सच्चर से पॉइंट होती है, जैसे ही पॉइंट से हमारे लड़के जो है उतरे हैं, उनको जो है मारना पीटना शुरू किया गया है। जब शुरू किया गया उनको जो है बहुत सारे चोटें लगी हैं। जामिया कराची की सिंधी डिपार्टमेंट के करीब से, तो इस तरह की कोई जो एक्टिविटी है या इस तरह की कोई अमल जो है वो ना लाया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से फिलवक्त कोई हतमी मौक़िफ़ जो है हमें देखने को नज़र नहीं आता। ताहम उनका ये ज़रूर किरदार है कि दोनों तलबा तंजीमों को के जो अहम रुकन हैं उनको आपस में जो मिल जुल के बैठने में और आपस में मसला जो है हल करने में वो ज़ोर दे रहे हैं। जी, और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे पुलिस की रफ़ा-ए-आम मलिर के इलाके में फौरी कार्रवाई। मददगार 15 के अहलकारों ने फ्लैट का ताला तोड़कर बच्चे को बाजियाब कराया है और इसके वालिदैन के सुपुर्द भी कर दिया। बच्चे को गुज़श्ता रोज़ न्यू टाउन के इलाके से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। बात करेंगे नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट औरंगी अल्फला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। न्यू टाउन की हदूद से अगवा होने वाला 12 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। 12 साला अंसफ को अल हलाल सोसाइटी से अगवा किया गया था। SHO अल्फला के मुताबिक बच्चा बाग मलीर ब्लॉक ए के एक मकान में जो है वो कैद था। रात के आखिरी पहर बच्चा जो है वो रोने लगा। मामला मशकूक देखकर अहले इलाका ने पुलिस को जो है वो 15 पर फोन करके इतला दी। SHO अल्फला फौरी तौर पर जो टीम के साथ जो है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर पुलिस पार्टी अंदर दाखिल हुई। मजीद 2 ताले तोड़े तो बच्चा मिला, जिसके मुंह पर रुमाल जो है वो बंधा हुआ था। बाजियाबी के वक्त बच्चा जो है वो नींद बेहोशी की हालत में था, जबकि SSP औरंगी के मुताबिक मुतासरा बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चा उस वक्त अपने वालिदैन के साथ जो है फिलहाल निजी अस्पताल में जो है वो आगा खान में मौजूद है। अगवा में मुलविस अनासर का पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अल्फला पुलिस ने बाजियाबी के बाद मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जबकि मैं मजीद आपको बताऊं कि बच्चा जो है वो रात 12:30 बजे के करीब न्यू टाउन से अगवा हुआ है। रात 3 बजे न्यू टाउन थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और करंगी थाने की हदूद में, करंगी डिस्ट्रिक्ट करंगी की हदूद में बच्चे को अगवा करके रखा गया। रखने के बाद जो बच्चे को बाकायदा कुछ नशे आवर गोलियां भी जो है वो दी गई, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नींद बेहोशी हालत में था। हम मजीद देख रहे हैं कि एक गोदाम सा बना हुआ है जहाँ पर पहले कॉल सेंटर बताया जा रहा था कि कॉल सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल ये खाली इमारत है। यहाँ पर बच्चे को अगवा करके रखा गया था। फिलहाल एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है, जिसको भी न्यू टाउन थाने के अंदर दिखाया गया है। और बच्चे ने एक गैलरी नुमा बनी हुई गोदाम के अंदर बच्चे ने किसी कोशिश करके वहां जाकर शोर किया, थोड़ा रोया, तो नीचे जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि बच्चे के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पर 15 को इतला दी। इस पर अल्फला थाने के जो SHO हैं नियाज जो वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद खुद कार्रवाई करके ताला तोड़कर बच्चे को बाजियाब कराया। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, अपडेट करेंगे। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की जान ना छूट सकी। कुरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान होकर रह गए हैं। कहते हैं 10-10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद इस पर क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कहीं पे अगर तकनीकी ख़राबी या फिर केबल फॉल्ट आते हैं तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके ज़िया कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, बिलखुसूस ज़िया कॉलोनी के मकीन। इनसे जानते हैं कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर, और जब लोड शेडिंग हो जाती है तो कितनी परेशानी होती है? भाई 3 घंटे लाइट आती है तो 4 घंटे लाइट नहीं है। परेशान हाल है ये आवाम, देख लो। और एक तो बिल इतनी आ रहे हैं कि हम परेशान हो गए। 6-6, 7-7 बच्चे, 25,000 तनख्वाह, हम लोग कहाँ जाएँ? ऊपर से ये लोड शेडिंग हमें परेशान करके रखा है। रात को 3-3 बजे लाइट नहीं होती तो हम कहाँ जाएँ? सुबह ड्यूटी पे भी जाना होता है। परेशान हाल है, हमारे को पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म से जनाब से अपील करते हैं कि बराए मेरी मेहरबानी खुददारा ज़िया कॉलोनी के अवाम पे करम करें। 6-6 घंटे लाइट ना होने की क्या तो क्या भाई, बंदा लाइट की परेशानी देखे, पानी की देखे, किन किन मसलों में हल करे।
तो भाई हम परेशान हाल हो गए खुदा के वास्ते भाई, कैसी वालों कोई जुल्म नहीं करो। और एक तो बिल इतना दे रहे हो कि बर्बाद हो गए। 36,000 का बिल आया हुआ है, 25,000 मेरी तनख्वाह है, मैं 36,000 कहाँ से भरूंगा भाई। तो खुदारा ये इलाका मकीन जिनका कहना है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसके नतीजे में लोड शेडिंग की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हुए हैं। ज़िया कॉलोनी के जो मकीन है उनके हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो लोड शेडिंग सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, करंगी अलावाला टाउन में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार हो गए। इलाका मकीन कहते हैं कि घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मजीद बात करते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ जहाँ कराची के बेशतर इलाकों की तरह जो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने घंटे की जो है यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पर रोज़ाना 1.5 घंटे की 4 दफ़ा लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस यहाँ ना पानी है ना बिजली है और गैस भी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें से भी कासिर हैं। और आप यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम देख लें और सामने देखें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना बच्चे तालीम के लिए सही से जा सकते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इससे हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग होने से क्या मुश्किलात आती हैं? बिजली की लोड शेडिंग होने से ना बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, ना पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनका काम ही नहीं होता है, होमवर्क ही नहीं कर पाते हैं, लाइट गई हुई होती है। और मरीज़ किस तरह रहते हैं घर में? मरीज़ का तो जीना ही हराम हो जाता है ना, वो तो जीते जी मर जाता है जब लाइट जाती है। कोई टेंशन कोई फिक्र होती है कि लाइट नहीं है? टेंशन ज़हनी अजियत तो होती है ना। ज़हनी क्या कहेंगे कि सर तो फिर अगर लाइट नहीं आती तो बिल भी नहीं आते होंगे? बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, बिल ही तो आ रहा है, लाइट आए ना आए लेकिन बिल तो ज़रूर आता है। और बिल पता है कितना आ रहा है? 6,000 8,000, 2 कमरों के मकान में 6,000 8,000 का बिल है, कम से कम 6,000 बिल आ रहा है। लाइट होती नहीं है उसके बाद। और लाइट होती सर आप बताएं कि कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर है? बहुत ज़्यादा मुतासिर है इससे, लाइटों की वजह से बहुत ज़्यादा। मतलब दिन में पूरा समझ लें कि 8 घंटे जो है ना वो लाइट होती ही नहीं है। लेकिन आपने सुना कि इनका कहना है कि हर 1.5 घंटे के वक्फे से जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो दिन भर चलता रहता है। मरीज़ हों या बच्चे हों, बच्चों की तालीम नहीं हो पाती, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, हर वक्त यही इंतज़ार होता है कि लाइट आएगी तो अब काम करेंगे। कारोबारी तबका अलग मुतासिर है, मरीज़ जो है वो लाइट जाने से अलग अजियत में पड़ जाता है। बिलों की अदायगी पूरी है, बिल पूरे आते हैं। जी, रेड लाइन के तरक्याती काम के बायस गैस पाइपलाइन की मुंतकिली के बायस रात 11 से सुबह 7 तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सफूरा चुरंगी, सादी टाउन, कैपिटल सोसाइटी, जामिया कराची सोसाइटी शामिल हैं। जी हाँ, आपको इस हवाले से बताएंगे सफूरा चुरंगी, सादी टाउन, कैपिटल सोसाइटी, जामिया कराची सोसाइटी इन तमाम इलाकों में शामिल है। रेड लाइन के तरक्याती काम के बायस गैस पाइपलाइन की मुंतकली के बायस रात 11 से सुबह 7 तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी, जिसका बताया गया है। रेड लाइन के तरक्याती काम के बायस गैस पाइपलाइन की मुंतकली के बायस रात 11 से सुबह 7 तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम इफ्तिखार। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान SSGC के मुताबिक BRT ऑफिसर्स की दरख्वास्त पर हाई और लो प्रेशर गैस पाइपलाइन की रीलोकेशन का काम सफूरा चौरंगी पर प्लान किया गया है और इस सिलसिले में आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 8 घंटों के लिए गैस की फराहमी मौसम रहेगी। जो इलाके गैस की फराहमी से मुतासर होंगे उसमें सफूरा चौरंगी के इलाके है, सादी टाउन के इतराफ़ के इलाके हैं, कैपिटल सोसाइटी है, कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, मेमन फाउंडेशन अस्पताल उसके इतराफ़ के इलाके हैं, डाउ यूनिवर्सिटी उसके इतराफ़ के इलाके हैं, सुपारको हेड क्वार्टर है। इसके साथ साथ सच्चर गोड उसके इतराफ़ के इलाके हैं जो कि गैस की फराहमी से मुतासर होंगे। वसीम, ये भी बताइएगा कि गैस तो पहले ही नहीं आती है, तो इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा और SSGC की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले पे SSGC हुकाम ने वाज़ेह किया है कि BRT ऑफिशल्स की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि BRT का मंसूबा जो है वो चल रहा है और इसके साथ साथ ऑफिशल्स की दरख्वास्त थी कि जो SSGC की लाइन जारी है उसके हवाले से वो नज़रसानी करें, जिस पर जो SSGC हुकाम है उसकी जानिब से हाई और लो प्रेशर गैस पाइपलाइन की रीलोकेशन का काम जो है वो सफूरा चौरंगी पर अंजाम तय पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आज रात 11 बजे से लेकर सुबह
7 बजे तक 8 घंटों के लिए गैस की फराहमी मौतल रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 2.5 नंबर सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड गैर फाल हो चुका। गायनी डॉक्टर्स के पास दवाएं लिखने के लिए पर्चियां तक मौजूद नहीं। मजीद बात करेंगे राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हॉस्पिटल कोरंगी में, जहां पर सहूलियात का फुकदान है, सेहत की जो सहूलियात है उनका फुकदान है। अंदर हम देखकर आए, यहाँ पर विजिट करके आए तो रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी बिल्कुल गैर फाल पड़ा हुआ है। वहाँ पर टूटी फूटी चेयर्स जो है वो इस तरह पड़ी हुई, जाले लगे हुए हैं। इसी तरह साथ ही साथ मेल OPD जो है वो भी बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ पर भी कोई बेड की सहूलत नहीं है। इसी तरह जो गायनी का वार्ड है वहाँ पर इनके मुताबिक डॉक्टर तो मौजूद है मगर कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो कि कहा जा सके गायनी की OPD। हमारे साथ खातून मौजूद है जो कि अंदर से अभी चेकअप कराने के इरादे से आ रही थी तो वापस ऐसी खाली आ जा रही है। इनसे जान लेते, मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, अंदर देख के आई हैं। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स हैं। मैं सुबह भी आई हूँ लेकिन मैं बहुत परेशान बैठी रही, बस अब वो वेट करते रहे कि अभी स्लिप बनेगी, अभी थोड़ी देर वेट करें, अभी आएंगे। अपने टाइम पर भी नहीं आए, टाइम आउट ऑफ टाइम आए। फिर उसके बाद स्लिप के लिए ढूंढते रहे, स्लिप नहीं है, हम किस चीज़ पर आपके नाम लिखें, किस चीज़ पर स्लिप बनाएं। हम काफ़ी देर वेट किया, फिर वो स्लिप बनी। तो बहरहाल ऊपर अंदर इतनी परेशानी है, एक रूम में फर्स्ट फ्लोर पे अगर BP चेक हो रहा है तो सेकंड पे जो है ना वो शुगर, इस तरह से यहाँ का इंतज़ाम है, कुछ है नहीं, एक एक चीज़ के लिए बैठना पड़ रहा है वहाँ पे। तो अच्छा ये मुझे बताएं दवाओं वगैरह की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बिल्कुल खाली वार्ड्स पड़े हुए हैं। आपके सामने क्या था? मेडिसिन में भी अभी उन्होंने मुझे बोला है ये सिर्फ 2 टैबलेट्स हैं, ये यहाँ से मिलेंगी, बाकी आपको सब बाहर से ही लेनी पड़ेंगी मेडिकल स्टोर से। ये बताएं जब गवर्नमेंट के अस्पताल कायम है तो फिर इंसान बाहर जाके क्यों ले, फिर फ़ायदा है ऐसे? नहीं तो फिर किस लिए आता है? गरीब इंसान इसीलिए आता है कि आजकल महंगाई इतनी है कि चलने चंद पैसे इंसान के बच जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जो कि यहाँ पर सुबह से आई हुई थी और इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का, जो कि पर्ची बनाने के लिए भी जो है उनके पास पर्ची मौजूद नहीं थी। तो फिर जब पर्ची बनाई, पर्ची बनाने के बाद बारी आई मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, तो मेडिसिन में भी सिर्फ 2 दवाइयाँ लिख दी हैं और कहा गया है कि बाकी जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से ले लें। आवाम का यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट के अस्पताल बनाए गए हैं तो फिर इन गवर्नमेंट के अस्पताल में सहूलियात भी होनी चाहिए ताकि जो है गरीब आवाम आए, क्योंकि इनके लिए इलाज करवाना सिर्फ यहीं से अफोर्डेबल है। प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जाएंगे वही दवाई आपको जो है महंगे से महंगे दर में मिल जाएगी और वही इलाज आपको महंगे से महंगे दर में हो जाएगा। आवाम ने अपील की है कि यहाँ के गवर्नमेंट के अस्पतालों के हालात सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि गरीब आवाम भी अफोर्ड कर सकें इन अस्पतालों को। जी हुकूमत सिंध का सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम सामने आ रहा है। सिंध काबीना में सोबराज अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल पेडियाट्रिक यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी है। आजम बस्ती में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड सेंटर बनाया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का सेहत के शोबे में जो है एक बड़ा इक़दाम सामने आया है। इस सिलसिले में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो ट्वीट कर दिया गया है। इस ट्वीट में मेयर कराची का कहना है कि सिंध काबीना ने सोबराज अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल पेडियाट्रिक यूनिट कायम करने की मंजूरी जो है वो दे दी है, जबकि आजम बस्ती में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड सेंटर के क़याम की भी जो है मंजूरी दी गई है। उनका कहना था कि दोनों अदारे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के तहत कायम किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी सेहत के शोबे में जो है वो खिदमात अंजाम दे रही है। मेयर कराची का मज़ीद कहना था कि सेहत समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। और यहाँ खबर शामिल करें, मंगूपे टाउन की तारीख में पहली बार सड़कों की धुलाई शुरू कर दी गई है। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही कहते हैं कि मंगूपे टाउन को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर लिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुंतखब नुमाइंदों की काविशों के नतीजे में मंगोपीर में आज जंगल में मंगल का समा है और एक तवील अरसे के बाद यहाँ के जो मकीन हैं उनकी मसाइल का भी जो है वो ख्याल कर लिया गया है। सफाई सुथराई के इंतज़ामात जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों की काविशों से यहाँ पे बेहतर अंदाज में जो है इसका काम का आगाज़ आज से कर दिया गया है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन के हाजी नवाज बरोही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज बरोही साहब।
बेहतर इकदाम दिखाई दे रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपने भरपूर तरीके से यहाँ फाल तो कर दिया है, लेकिन बुनियादी मकसद जो है सॉलिड वेस्ट का है घर घर से कचरा उठाना, उस तरफ जो है अमली इकदाम कब तक सामने आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड जो है मैनेजमेंट है, इस वक्त मैं समझता हूँ कराची में जो है ये टॉप पे जो है सफाई का काम कर रही है। इससे पहले मंगो पीर टाउन में सिर्फ हमारे पास 2 यूसीयू में काम करते थे। जैसे ही मंगो पीर टाउन बना और मंगो पीर की 16 यूसीयू बनी। 16 यूसीयू का एक मतलब एक बहुत बड़ा रकबा है और लगभग 10 लाख की आबादी है। तो आप एक कोना ले लें औरंगी, दूसरा कोना बलूचिस्तान, तीसरा कोना जो है अपना हाईवे, मोटरवे और प्लस जो है अगवान बस्ती। तो एक बड़ा चैलेंज भी है और हम मुसलसल जो है अपने वालिदैन की दुआएं लेके हम ग्राउंड में उतरे हैं और इस सिलसिले को हमने जारी रखा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से हम मुतमईन हैं, क्योंकि जिस तरह मेयर साहब ने हमारी उनसे मीटिंग कराई और मीटिंग कराने के बाद हम हर वक्त उनसे राब्ते में हैं और जहाँ जो भी हमारे मसाइल होते हैं, क्योंकि मसाइलिस्तान तो है, एरिया बहुत बड़ा है। अब सिर्फ इनकी जो ना टीमें पहले 2 यूसीज देखते थे, अब इन 16 यूसीयू में ये जिस तरह जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम भी मुतमईन हैं और हमारा अवाम भी मुतमईन है। शजरकारी के हवाले से आप बताइएगा, बेहद ज़रूरी है और जो क्लाइमेट चेंज है उसका वाहिद हल जो है मौसर शजरकारी बताया जा रहा है। आवाम को भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। आप अवामी नुमाइंदे हैं, इस पर मज़ीद क्या करने का इरादा रखते हैं? अच्छा सर, एक तो मैं यहाँ एक पैगाम दूंगा अपने आवाम को कि इस वक्त जो है ये जो बाजा लेके पूं पूं करते हैं, आप बजाय वो बाजा लेके पूं पूं करने का आप शजरकारी करें, जिसका हमने बाकायदा इफ्तिताह जो है औरंगी से किया। आज दूसरा मरला है, फिर तीसरा मरला हमारा 14 अगस्त पे है। तो इस तरह हम कोशिश करें पूरे मंगो पीर टाउन में शजरकारी का जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करके ये चीज़ें जो है हम अवेयर करें। बिल्कुल। हाजी नवाज़ बरोई चेयरमैन मंगो पीर टाउन का कहना है कि खिदमत का जज्बा हो तो इख्तियारात जो है कोई मायने नहीं रखते और उसका अमली सबूत जो है आज पेश किया जा रहा है मंगो पीर के इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम की बेहतरी और शजरकारी के हवाले से। और इनका कहना यह है कि मज़ीद खिदमात का ये दायरा कार जो है इसको वसी किया जाएगा। जी, खेलों की दुनिया का रुख करें तो आपको बताएं कि व्यूमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी बैडमिंटन और थ्रोबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इवेंट में जिना व्यूमेन यूनिवर्सिटी और 5 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की तालिबात शिरकत कर रही हैं। मोहम्मद हमाद वहाँ पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। आज KMC वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है जश्न आज़ादी थ्रोबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है, जिसमें जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी और जो है गर्ल्स कॉलेज की 5 टीमें जो है उसमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें इस वक्त जो है KMA और जिन्ना यूनिवर्सिटी के दरमियान जो है वो मैच खेला गया, जो कि जिन्ना यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स हैं उन्होंने जीत लिया। हमारे साथ जो है जिन्ना की लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने मैच जीता है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, जश्न आज़ादी के हवाले से टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मैच भी आप लोगों ने जीता है, तो क्या कहेंगी? लड़कियों ने काफ़ी जो है आपकी अच्छा खेला, आप इसकी जो है कप्तान थी, इन लड़कियों के साथ खड़ी हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं फेडरेशन का, यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त के मौके पे ये टूर्नामेंट करवाया है। वुमेन एम्पावरमेंट भी हुई है, इससे काफ़ी लड़कियों को कॉन्फिडेंस आया है। इंशाल्लाह यहीं से लड़कियाँ नेशनल्स में जाती हैं, आगे अकेडमी में खेलती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन हु सपोर्ट अस। हमारे साथ और भी कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है आज खेल पेश किया, उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, हमने देखा कि आप बड़ा ज़बरदस्त खेल रही थी, बॉल को काफ़ी अच्छे से जो है पकड़ भी रही थी और थ्रो भी काफ़ी आपकी ऐसी थी कि सामने वाली जो टीम है वो बॉल को पकड़ नहीं पा रही थी। तो क्या कहेंगी इस मौके पर? जश्न आज़ादी का जो है मौका है, 76 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो है वो हम लोगों को जो मोटिवेशन फेडरेशन की तरफ से मिलती है उसका बहुत बड़ा रोल है कि जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बस ये जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मैच के दिन जो है वो सुरखरू हो सकते हैं। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की गर्ल्स, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इस जश्न आज़ादी टूर्नामेंट में जो है लड़कियों की जो है बड़ी। आगे बढ़ते हैं। मौसम सुहाना हुआ तो सफारी पार्क में मौजूद हतनी, सोनिया और मलका ने एंजॉय करने का मूड बना लिया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद। बिल्कुल, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस मौसम को जहां पर कराची के शहरी एंजॉय कर रही हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इस सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए कराची के सफारी पार्क के अंदर सोनिया और मलका भी खासी खुश दिखाई दे रही हैं। अब से कुछ देर कबल ये दोनों यहां पर फुटबॉल खेल रही थी अपने मुहावतों के साथ, और अभी जो है वो इन्होंने ज़िद की है कि हमें मुहावत के साथ जो है वो यहाँ पर नहाना है। तो ये 2 मरतबा दिन में इनकी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर इसी तरीके से नहाती हैं और फिर इसके बाद जो है बाहर निकल कर एक मरतबा फिर खेलना शुरू कर देती हैं। बहुत ही
ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इनकी जो एक नई साथी है मधुबाला, वो भी कराची चिड़ियाघर से यहाँ पर सफारी पार्क शिफ्ट किया जाने का जो है वो इम्कानात अब ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उसका जो पिंजरा था वो भी अब तकरीबन 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 10% काम रह गया इस पिंजरे का, जो कि अब कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर 4 पास की टीम की हिदायत के मुताबिक इसके पिंजरे के अंदर जो है वो मधुबाला की शिफ्टिंग को मुमकिन बनाया जाएगा। तो ये मौसम जो है इन लोगों के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर ज़ू एंड सफारी रिक्रिएशन इकबाल नवाज साहब, हम इनसे बात करेंगे। इकबाल साहब, बहुत खुश दिखाई दे रही है और चलती फिरती। जी बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं कि दोनों जो एलिफेंट हैं ये काफ़ी खुश हैं और मौसम भी अच्छा है और सेहतमंद हैं, और इस टाइम जो है ये काफ़ी देर से खेल भी रही हैं और इनका ये मौसम के साथ जो है एंजॉय करना इस बात की अलामत है कि ये बिल्कुल फिट हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो मन घड़त खबरें चल रही हैं हतनी सोनिया और मलका को लेकर, उसमें कोई सदाकत नहीं है। ताहम अभी हम देख रहे हैं कि सोनिया और मलका जो है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर खेलते कूदते हुए दिखाई भी दे रही हैं। जी।